Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The French Hub. In today's video, we'll start with chapter number 9 of Mo Passport 4. Projet de vacances means holiday plan. So there are some students जो कि अपना holiday plan discuss करने लग रहे हैं. टोटल में भी देर आर सिक्स बच्चे दे रखे हैं एंड उनके प्लान दे रखे हैं. सो लेट्स रीड इट देम आउट. सबसे पहला फिलिप इज़ द गाय. वो अपने हॉलीडेज़ के प्लान के बारे में वो अपने एक्सपीरियंस जो होता है वो शेयर करने का लग रहा है कि वो क्या क्या करने जा रहा है. सो ही से cette année je ne pars pas en vacances mais mon correspondant indien va venir passer quelques jours chez moi. Means this year I'm not leaving for vacations, मतलब मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ. बट माई इंडियन पेन फ्रेंड क्या होता है जिसको आप लोग टेक्स्ट करते हो सिर्फ लाइक आपका वो आप कभी उससे रियल में मिले नहीं हो बट स्टिल आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो बट स्टिल यू आर फ्रेंड्स. उनको हम पेन फ्रेंड्स बोलते हैं. सो देयर इज़ अ पेन फ्रेंड ऑफ फिलिप, इंडियन पेन फ्रेंड ऑफ फिलिप हु इज़ कमिंग टू हिज होम फॉर पासिंग वेकेशंस. Je viens de l'inviter means I just invited him. Nous allons visiter ensemble Paris, Rouen, Rennes et Strasbourg. Means together we are going to visit Paris, Rouen, Rennes and Strasbourg. ठीक है, ये तो बात हो गई फिलिप की. नेक्स्ट हमारा दे रखा है सेलिन का. So she says, cette année je vais partir avec ma famille chez mes grands-parents en Suisse parce que nous venons de passer des vacances de Pâques en Italie. Means this year I'm leaving with my family to my grandparents' house in Switzerland because we just passed vacations इन पाक इन इटली में अभी हमने पास करी थी हमारी वेकेशन. सो इस वजह से इस बार मैं कहाँ जा रही हूँ, स्विट्ज़रलैंड जाने लग रही हूँ. मैं ग्रोपारों सोविया ए इल नोजातों तो tous les années means my grandparents wants and they wants us to come there and they wait for us for the whole year. मतलब पूरे साल उन्होंने वेट करा कि हाँ कब आएंगे. सो दैट्स वाई दिस ईयर शी इज़ फाइनली गोइंग टू हर ग्रैंड पेरेंट्स होम. राइट. फिर हमारा नेक्स्ट है एलिना का पार्ट. एलिना कहती है les vacances je les attends depuis longtemps means the vacations I've been waiting for them since a long time. On vient de passer les examens et on a vraiment besoin de vacances means we just passed our exams and we really need vacations. Je vais aller en Espagne avec mes amis means I'm going to Spain with my friends. Nous allons rester 2 semaines en soleil means we are going to rest 2 weeks in the sun. लाइक स्पेन में हम कह सकते हैं वो बीच पर जा रही है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है सन का जो है जिक्र हुआ है. मीन्स सन तो बीच पर होगा तो इस वजह से यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑन सोलाइल का यूज़ करा गया है. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है लुइस का पार्ट. सो लुइस कहता है pour moi les vacances c'est le moment de rencontrer la famille means for me the vacations it's the moment to meet the family. Ma famille habite au Canada donc on ne peut pas se voir le weekend. Means my family lives in Canada so we cannot see each other on the weekend. Je viens d'écrire à mes parents means I just wrote to my parents. Ils vont être très contents de me voir means they are going to be very happy to see me. Mais avant de partir, je vais acheter les cadeaux pour ma soeur, mes cousins et mes parents. Means Canada जाने लग रहा है वो अपने family के पास. So before going there, he will buy some gifts for his sister, cousins and parents. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है स्टेफिन. स्टेफिन कहता है pendant les vacances j'ai besoin de gagner un peu d'argent means during the vacations I need to earn a little money. Alors je vais travailler dans un supermarché means so I'm going to work in a supermarket. Je vais faire des économies pour voyager en Asie l'année prochaine means I'm going to save money. faire des économies हमारा एक एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब होता है to save money. pour voyager en Asie means to travel in Asia next year. So इस साल वो पैसे सेव करेगा so that he could travel to Asia the next year. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है प्रिया का केस. प्रिया कहती है cette année je vais faire un échange en France avec mes camarades means this year I am going to make an exchange in France with my comrade. camarade क्या होता है comrades. So nous allons visiter Paris et la Normandie means we are going to visit Paris and Normandy. Nous allons rester dans les familles d'accueil et nous allons suivre les cours de français à l'Alliance française. Means
we are going to stay in the host family and we are going to follow the French course in the Alliance Française. ठीक है, तो ये सारे थे हमारे प्लान अबाउट वेकेशंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स. अब जो इसकी एक्सरसाइज है आप लोगों को सॉल्व करने का ट्राई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसका फिलिप व faire pendant les vacances, मतलब फिलिप क्या करेगा वेकेशंस में. ऊ सेलिन vient elle de passer ses vacances de Pâques means where Celine just passed vacation of Pâques. पुरकुआ लुई जो हमारा पार्क होता है ना वो हमारा एक फेस्टिवल होता है. तो सेलिन ने देखो यहाँ पर बताया हुआ है अपने केस में दैट शी पास्ट हर पार्क्स वेकेशन इन इटली. जो पार्क एक फेस्टिवल होता है तो उसकी वेकेशन जब पड़ी थी तब उसने इटली में अपना टाइम स्पेंड करा था. तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, इटाली मीन्स इटली. Pourquoi lui ne peut-il pas rencontrer sa famille le weekend means why Louis cannot meet his family on the weekend because they live in Canada. ठीक है, इस वजह से. नेक्स्ट है हमारा यू हैव टू करेक्ट कंप्लीट विद अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. सो टेक्स्ट में से वर्ड आप लोगों को चूज़ करना है. टिक आप लोगों को यहाँ पर जो है टिक करके फिल आउट कर देना है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू फाइंड द अपोजिट फ्रॉम द टेक्स्ट. ठीक है, वर्ड्स मे कॉन्टोन मीन्स अनहैप्पी, अरीवे मीन्स टू अराइव, सेल मीन्स अलोन ओनली. ठीक है, सो ये इसके आप लोगों को अपोजिट्स फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पर हमारा इंटेक्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है. अब आते हैं ग्रामर पार्ट पर. ग्रामर में हमारे पास एक टॉपिक आता है ल पासे रेसो. अब हमारा पासे रेसो कहाँ पर यूज़ होता है. सो देखो, पासे रेसो इज़ द रीसेंट पास्ट टेंस, मतलब जो एक्शन अभी जस्ट अभी अभी आप लोगों ने कंप्लीट करा है तो उसको हम डिपिक्ट करने के लिए, डिनोट करने के लिए फ्रेंच में हम क्या उसको कहते हैं, पासे रेसों कहते हैं. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू से समथिंग हैज़ जस्ट हैपन. जस्ट हैपन के लिए पासे रेसों हमारा यूज़ होगा. पासे कंपोजिशन नहीं, पासे रेसों. अब इसकी फॉर्मेशन कब होती है, देखो जब हमारी वेनीर वर्ब कॉन्जुगेट करते हैं हम पास्ट टेंस में, फिर उसके बाद लगता है हमारा द एंड देन द इन्फिनेटिव फॉर्म, जिसका मतलब क्या बन जाता है, टू हैव जस्ट डन समथिंग. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पासे रेसों. राइट, फॉर्मेशन हो गई फॉर्मूले के अंदर, सॉरी डेफिनेशन के अंदर ही हमारी फॉर्मेशन भी हो गई. बट एक बार फिर से देख लो ए पार्ट में. फॉर्मेशन सबसे पहला पासे रेसों की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमारा होता है. फिर आती है वेनीर वर्ब जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर लगती है. फिर हमारे लिखती है द और डी अपोस्ट्रोफी जब वर्ब हमारी किससे शुरू हो रही हो, वॉवल से. एंड फिर हमारी लगती है वर्ब इन द इन्फिनेटिव फॉर्म. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले मैंने लगाया ज, फिर ज के साथ मैंने लगाई वेनीर वर्ब की कॉन्जुगेशन, फिर मैंने द लगाया एंड फिर वॉन्जे. इसका मतलब क्या बन गया, आई जस्ट एट. ठीक है, फिर त्यों भी अदर कर दे का क्या मतलब, आई जस्ट वॉच. ये जस्ट हमारा ज़रूर लगना है ट्रांसलेशन में. राइट, सो दिस इज़ हाउ हमारा जो है पासे रेसों की फॉर्मेशन होती है. अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक नोट दे रखा है जहाँ पर हमारी प्रोनोमिनल वर्ब दे रखी है. अगर मेरे को प्रोनोमिनल वर्ब कॉन्जुगेट करनी है तो वर्ब तो वही लगनी है इन्फिनिटिव फॉर्म, बट जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो वर्ब के डायरेक्ट आगे लगेगा. je viens de me réveiller मीन्स आई जस्ट वॉक अप. ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी फॉर्मेशन. अब आते हैं बी पार्ट पर जहाँ पर दे रखी है इसकी नेगेशन कैसे फॉर्म होती है. सो नेगेशन अगर मेरे को फॉर्म करनी है पासे रेसों के अंदर तो मैं सबसे पहले वर्ब जो होगी हमारी, मतलब जो वेनियर वर्ब होगी उसके आगे लगेगा न, एंड वेनियर वर्ब के बाद क्या लगेगा, पा. ठीक है, सो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, je viens de jouer मीन्स आई जस्ट प्लेड. तो मेरे को आई डिडंट प्लेड तो मैं क्या कर लूँगी, विया के आगे न लगाया एंड विया के बाद पा लगाया. ऐसे मेरा क्या बन गया, नेगेशन कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी नेगेशन कंप्लीट हो गई. फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्यूचर प्रूफ. जैसे कि अभी अभी हमने देखा पासे रेसों जो कि एक्शन अभी अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट करा, उसके लिए पासे रेसों. फ्यूचर प्रोच कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर द एक्शन इन द न्यू ईयर फ्यूचर. इट एम्फेसाइजेस दैट देयर इज ऑलरेडी एन इंटेंशन टू कैरी आउट द एक्शन एंड दैट द एक्शन विल टेक प्लेस शॉर्टली. मतलब कि इंटेंशन हो चुकी है उस एक्शन को करने की एंड एक्शन जल्दी ही जो है होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर प्रोच यूज़ करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में वही हमारा यूसेज दे रखा है पॉइंट्स में. सबसे पहला पॉइंट, एक्शन दैट विल टेक प्लेस शॉर्टली, ये हमने कर लिया. जैसे कि एलेना व पार्थिर दो सेकंड मीन्स एलेना इज़ गोइंग टू लीव इन 2 seconds. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि हाँ वो लीव करेगी एंड जल्दी वो 2 seconds के अंदर भी होने वाला है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
फ्यूचर प्रोज का यूज़ करते हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा यूजेज। नेक्स्ट आती है हमारी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, फिर हमारी लगती है आले वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं, फिर हमारी जो होती है वर्ब, वर्ब हमारी लगती है इन द इन्फिनेटिव फॉर्म। तो वैसे हमारी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है फ्यूचर प्रोज की। अब यहाँ पर बात करते हैं सेम केस प्रोनोमिनल वर्ब्स क्या क्या होगा। तो जो वर्ब होगी मींस इन्फिनेटिव वाली वर्ब, उसके आगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, एंड वैसे हमारी प्रोनोमिनल वर्ब भी फ्यूचर प्रोज के अंदर कॉन्जुगेट हो जाएगी। फिर आती है हमारी नेगेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ला नेगेशन में क्या होता है, जो हमारा न होता है वो लगता है आले वर्ब के आगे, एंड पा लगता है आले वर्ब के बाद। सो दिस इज़ हाउ यू फॉर्म द नेगेशन। अब लास्ट में हमारी एक्सरसाइज बचती है, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करनी है, अगर नहीं होती तो आस्क मी इन द कमेंट्स। So we'll meet in the next video where we will do the last chapter of this book, Mo Passport 4, chapter number 10. So see you in the next video.